So student, before going to start with the practical solution, you just write down the question. This is the question, okay? This question I will explain now, okay? So welcome back to my channel, Commerce Adda. So student, in this video I will solve one question, that is preparation of income and expenditure account. From the receipt and payment account we will prepare one income and expenditure today, okay, in this video. So this is the question you can see, okay, accountancy, that is NPO chapter, that is not for profit organization. So in this video we will prepare income and expenditure. So this is the question: following is the receipt and payment account of Indian Sports Club for the year ended 31st/3/2014. So this is the question, you just look at, okay. So balance is given, again subscription is given, okay. This is the question, you just note it down in your copy so that you will understand while you do the sum, okay. So this is the question. If you anyone interested to write, then you can write on this video, okay. So this is the question, okay. Additional information is also given here, okay. Additional information, number one, just like given here, okay. On 31st March 14 subscription outstanding, okay, was rupees 2000, and on 31st 3 subscription is given, okay. Everything is given here, okay. Just look at. So there are various points, okay. This is a very critical question, but I will explain it very nicely, okay. Just follow the instruction so that just don't skip the video, you just continue with the video, okay. Here lastly it is given prepare income and expenditure account of the club for the year ending 31st March, okay. We have to prepare income and expenditure. Year ending is 31st March, okay, 14th tak. This is our year ending 31st March. This is the closing year ending date, okay, and a balance sheet as on that date, as at that date, okay. Same date में हम लोग को क्या बनाना है? In this question we have to make one balance sheet also from that information, okay. This is the information. So just write down, we'll solve this question, okay. So let's proceed with the practical problem, okay, solution, okay. So student, just look at this is the solution, okay. Income and expenditure we have to make from that question, okay. Income and expenditure account for the year ending 31st March. ये था हमारा year ending कब होगा? 31st March 14, okay. This side debit side, this side credit side. Debit side is expenditure. We'll write all the expenditure here, debit side, and all the incomes in credit side. Okay, let's proceed with the practical, okay. Solution, this is the solution. First of all, write to salary. If you'll pay the salary, then it is our expenditure. Just write down salary. Within the column, write down 15,000, okay. So there is one advance outstanding is there, okay. One outstanding is there. We have to write outstanding add, okay. Outstanding कब का था outstanding हमारा? 31/3/2014. That means हम लोग कब का बना रहे बैलेंस? We are making this account as profit and loss income expenditure account, okay. 31st March 14, okay. That is why this outstanding is added 31st/3/14, okay. ये कब का है? यही साल का है ना, तो हम लोग ये लिख दिया outstanding है. At the end also it is outstanding. We have to receive that amount, okay. We have to pay that amount. That's why we have salary is expenditure. So we added this expenditure here in the same year, okay. What is the amount? 1,500. Write down. Just outer column में निकाल दो यहाँ पे 16,500. Is it okay? And next point. Next is office expenses. ठीक है. It is our expenses. Just write down directly, okay. What is the amount? 6,000. Just write down. Next, there is tournament expenses. So student, this is tournament expenses, okay. Just write down tournament expenses here inside the column. You just write down here 31,000, okay, minus 26,000. Okay, why I have deleted this? You have to see the amount, okay. In this question we have tournament fund. We have received tournament fund 26,000, but the expenses incurred is 31,000. So we'll deduct this 31,000 minus 26,000. Then you will receive here expenditure side. Expenditure is more, that is why 26 minus fund we have received. So minus करने के बाद कितना amount आएगा हमारा? यहाँ पे 5,000, okay. This is the amount. After that, next point we have depreciation, okay. To write depreciation, okay. Depreciation on, इसको अंडरलाइन करेंगे. तो हमारा क्या क्या डेप्रिसिएशन बाकी है अभी? यहाँ पे हमारा है एक बिल्डिंग है,
ठीक है, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद क्या है, फर्नीचर वी हैव, नेक्स्ट वी हैव बिलियर्ड। ओके, बिलियर्ड टेबल, टेबल खरीदा गया है, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, ये सब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। ठीक है, कितना परसेंट लगेगा इसमें, यहाँ पे हमारा लगेगा 10%। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे दूंगा। ठीक है, यहाँ बोलूंगा 10%। ठीक है, 10%, सब में 10% लगेगा, तो डायरेक्टली मैंने शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा बिल्डिंग का अमाउंट कितना आएगा, 10% लगाएगा तो बिल्डिंग में आपका अमाउंट आएगा 7,500। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग का अमाउंट 75,000 है, तो 10% इतना आएगा। उसके बाद फर्नीचर में 18,000 है, तो हमारा 1800 आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद बिलियर्ड टेबल में 10% बोला है, तो 10% में कितना आएगा हमारा, 20,000 था बिलियर्ड टेबल का, तो हमारा 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बोला है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितना बोला है, 10% बोला है, अमाउंट कितना है 70,000। ठीक है, उसमें 7,000। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और एक बात हमारा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को देखना है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए हमारा एक पॉइंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखिए आप बुक में दिया है, रिसिप्ट में 40,000 दिया है, और एक हमारा यहाँ पे दिया है, एक आप देख सकते हैं, हियर इट इज गिवन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000। तो हमारा टोटल कितना आएगा एक्सपेंडिचर, 30,000 प्लस 40,000, तो 70,000 हो गया। तो हमने यहाँ पे 70,000 पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 70,000 इंटू 10%, 10 मीन्स 10/100। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, सब में 10% लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी 40,000 बुक में था, और 30,000 आपका एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था, तो 70,000 होता है। ठीक है, तो इसमें 10% लगने से 7,000। ठीक है, ये जस्ट दिखाया आप लोग को मैंने। तो ये टोटल आपका अमाउंट आएगा यहाँ पे पास करने के बाद 18,300। ठीक है, ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बिल्डिंग में हुआ 10%, फर्नीचर में 10%, बिलियर्ड टेबल में 10%, उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 10%। लेकिन ऑलरेडी बुक में दिया था 30,000 40,000, उसके बाद 30,000 आउटसाइड में दिया था, टोटल कर दिया हम लोग ने, ये सब एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 70,000 में, तो 10% 7,000। ओके, तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया 18,300। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा क्या है, कुछ आइटम बाकी नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग छोड़ देंगे इसको अभी। उसके बाद नेक्स्ट साइड हमारा इनकम साइड में हम लोग लिखेंगे अभी। इनकम साइड में पहले हम लोग को लिखना है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बोल के लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 52,000। ठीक है, दिया है ना 50,000, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में, यू कैन सी द क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन 52,000। ठीक है, अब लिख दिया हम लोग ने। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है, अभी हम लोग को लेस ऐड करना है, क्या क्या लेस ऐड होगा अभी वो देखना है हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारा आया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के बोला है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम लोग को देखना है। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट हम लोग लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है क्या है, अभी हम लोग लेस करेंगे, कौन सा अमाउंट लेस करेंगे, जो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। कब का है, हम लोग ये 14 का बना रहे हैं, तो हम लोग 14 का देखना है, तो 13 का बना रहे तो 13 का था, तो हम लोग को लेस करना है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कब का था, यहाँ पे लिखना है 31/3/2013। ठीक है, ये जो अमाउंट कब का है, 13 का है, तो ये हम लोग को माइनस करना है, क्योंकि हम लोग 14 का बना रहे हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा अमाउंट, यहाँ पे है 3,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद लिखिए, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 49,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है, ऐड करेंगे अभी क्या ऐड करेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कौन सा है, 31/3 ठीक है 2013। ओके, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। ओके, दैट इज रॉन्ग, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, 31/3 दिस इज 14। ओके, दिस वन इज 14, तो हम लोग 14 का बना रहे हैं, तो 14 का हमारा ये इनकम है। ठीक है, एट द एंड हम लोग को मिला है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग था, मिला है, तो हम लोग को ये ऐड करना है, तो कितना अमाउंट होगा, 2,000। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग कब का बनाना है, 31 14 का बनाना है, तो ये ऐड होगा, जो भी बाकी पहले का था वो हम लोग को लेस करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम, तो ये रहा हमारा
सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो ये हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 51,000, ठीक है। 49 प्लस 2 51, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है क्या चीज है, अभी एंट्रेंस फीस आएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो डायरेक्टली अमाउंट दिया गया है, जस्ट राइट डाउन 5,000, क्लियर। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली अमाउंट दिया गया है, कितना अमाउंट है 1,000, जस्ट राइट डाउन हियर 1,000, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को दूसरा ध्यान रखना है क्या दिया है, नेक्स्ट इज accrued, 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 ओके। accrued interest on क्या था, इन्वेस्टमेंट। we have received some amount as accrued, okay, on investment, okay। कितना परसेंट मिला था, एट द रेट 12% on how much rupees 30,000, ठीक है। 12 3 36 मीन्स 3600 हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एक्रूड है, इंटरेस्ट मिला है हम लोग को, तो हम लोग ने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम लोग को देखना है अभी बैलेंस किधर ज्यादा है किधर कम है, ठीक है। ये हम लोग जब प्लस करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ ये बात। तो हम लोग को प्लस करने के बाद 60,600 दिस साइड, बिकॉज इनकम इज ज्यादा है, तो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 60,600। उसके बाद जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सब हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये हम लोग जब मैनेज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ लिखना है हम लोग को। जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन यहाँ लिखना है टू एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सरप्लस, मतलब प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा ये क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इनकम, ठीक है। ज्यादा इनकम हुआ ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो भी था उससे इनकम ज्यादा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सरप्लस, दैट इज सरप्लस, है कि नहीं। तो जस्ट ये कॉन्सेप्टली दिया है मैंने। तो कितना आपका डिफरेंस कितना आया, इनकम एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हमारा आएगा बैलेंस, दैट इज 14,800, ठीक है। ये रहा, तो ये हम लोग को अभी टैली करना है, बस आपको लिख के छोड़ देना है इसको। तो ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इस तरह बना जाता है। तो जस्ट यू फॉलो द कंसेप्ट, ओके, डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू विल मिस आउट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, वो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। सो स्टूडेंट विल प्रिपेयर वन बैलेंस शीट, ओके। दिस बैलेंस शीट इज मेड as a 31st March 13 because the capital fund is not given in the question, that is why we have to make this opening बैलेंस शीट, ओके। लास्ट ईयर का बैलेंस हम लोग को नहीं दिया है, तो उसके लिए हम लोग ने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, कब का, लास्ट ईयर का, ठीक है, एज ए 31st March 13। अभी इसके लिए हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है क्वेश्चन में, यू जस्ट लुक एट इन द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन हियर एसेट साइड इट इज गिवन कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड, ठीक है। कितना दिया हमारा कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस दिया है ना कैश इन हैंड बोल के, ठीक है, बैलेंस ब्रो डाउन बोल के 10,000 दिया है। उसके बाद हम लोग को देखना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो भी पहले का था, जो 13 का था, हम लोग को वो लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए आप देख सकते हैं, ऑन 31/3/13 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये कब का था, आपका 13 का था। तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट निकालने, कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, उसके लिए हम लोग को लास्ट ईयर का बैलेंस निकालना है, उसके बाद कैपिटल फंड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, लास्ट ईयर का कैपिटल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कैपिटल फंड के लिए जानने के लिए। तो हम लोग का 3,000 है, ठीक है। तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखना है अभी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका
3000, तो यहाँ पे लिखना है 3000, ठीक है। 13 का था, उसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 31/3/2013। कब का था? 13 का था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है बिल्डिंग। बिल्डिंग ये सब हमारा एसेट्स था, तो लास्ट ईयर का था ना, ये तो वहां पे लिखा था, है कि नहीं। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 75,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स है, तो लिख दो हमारा फर्नीचर अमाउंट 18,000। ये सब हमारा बैलेंस निकालने के लिए हम लोग, कैपिटल फंड जो निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को ये लास्ट ईयर का बैलेंस हम लोग को जरूरी है, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं 18,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 12% फर्नीचर दिया ना, इन्वेस्टमेंट दिया है, 12% इन्वेस्टमेंट बोल के एक दिया है सर, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, कितना दिया था अमाउंट? 30,000 दिया था, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल के दिया था एक ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो हम लोग को वो चीज लिखना है। यहाँ पे 13 का था, तो उसके लिए हम लोग लिख दिया हाउ मच? 30,000। तो हम लोग का अभी ये टोटल करने के बाद कितना आएगा अमाउंट? कितना आएगा? 166,000, दैट मीन्स 1,66,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आप लिख सकते हैं 166,000, क्योंकि यहाँ में कोई भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व बोल के कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। उसके लिए हम लोग का कुछ भी नहीं आएगा, तो डायरेक्टली हम लोग को जो भी अमाउंट निकलेगा ये हमारा क्या है? कैपिटल, क्या लिखे हम लोग? कैपिटल फंड। जो भी हम लोग का ये बैलेंस निकला है, दिस साइड नथिंग इज देयर, सो विल राइट कैपिटल फंड। जैसे हम लोग लिखते हैं ना पार्टनर्स का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बोल के, तो इसलिए क्या है? कैपिटल फंड है हम लोग का। ये क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। जो भी हम लोग का कैपिटल निकला है ये हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। हम लोग ने इसको बैलेंस किया, लास्ट ईयर का जो भी था उसको हम लोग लिख के बैलेंस निकला। कितना निकला बैलेंस हमारा? कैपिटल फंड में कितना था लास्ट ईयर में? यहाँ लिखना है 166,000, ठीक है। ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, कब का? लास्ट ईयर का, ठीक है। तो हम लोग को अभी कब का बनाना है बैलेंस शीट? एज ए क्वेश्चन हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है कब का? एज ए 31 मार्च हम लोग का ये 14 का बनाना है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज हम लोग को जरूरी है ये बनाने के लिए, 14 का बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग का पहले का कैपिटल हम लोग को जरूरी है, लेकिन 13 का जरूरी है ना। उसके लिए 14 में हम लोग को दिखाना है ये हमारा बैलेंस था बोल के कैपिटल फंड, तो उसके लिए हमारा लायबिलिटी हम लोग को शो करने के लिए हम लोग को ये बैलेंस हम लोग को निकालना जरूरी है, ठीक है। सब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, लेकिन सम क्वेश्चन में हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग को बनाने पड़ता है, निकालने पड़ता है, ठीक है। एज ए इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया जाता है, तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे अभी लिखना है, फिर वही प्रोसेस हम लोग को यूज करना है। कैश इन हैंड कितना है हमारा? 19,000। अभी हमारा क्या रहा? तो ठीक है, कैश इन हैंड कितना आया? ये हमारा अभी जो हम लोग बना रहे हैं, क्लोजिंग बना रहे हैं ना, है कि नहीं? 14 का बना रहे हैं, तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस देखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? बैलेंस सीडी कितना है? 19,000 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है सब्सक्रिप्शन। अभी आया सब्सक्रिप्शन का पार्ट, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग 2,000 था, क्योंकि हम लोग 14 का बना रहे हैं, तो 14 का ध्यान में रखना है, तो 2,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग का जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन किया था, बिल्डिंग में किया था, क्या क्या में किया था ना, तो हम लोग को ये चीज अभी माइनस करना है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग जो भी एसेट्स था, तो वहां से हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन कितना था? जो भी था अमाउंट, ठीक है, एट द रेट 10% था शायद, तो 10% होने से कितना आएगा? 7,500, ठीक है। ये लिख दिया, तो ये कितना आएगा? 6,7,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका है फर्नीचर, ठीक है। ये सब में हमारा डेप्रिसिएशन लगा है, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। 18,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना था? 10%, दैट मीन्स 1,800, तो ये भी बाहर निकाल दीजिए आप, 16,200, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्या है? एक है बिलियर्ड टेबल ना, हम लोग लिखे थे, उसमें भी डिप्रिसिएशन लगा है। कितना अमाउंट लगा है डिप्रिसिएशन?
20,000 का था, इसमें भी 10% लगाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% था ना, तो 10% कितना आएगा, 2,000। तो ये सब हम लोग को माइनस करना है और इजीली हम लोग को लिखना है। तो बेसिक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आप लोग जैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट इज 12% इन्वेस्टमेंट बोल के इन्वेस्टमेंट दिया था, है कि नहीं, उसमें से हम लोग का क्या है, 12% इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया था, अमाउंट हाउ मच, 30,000 था। उसके बाद हम लोग को क्या मिला था, एक्रूड बोल के था ना, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड बोल के दिया था, है कि नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ से आया हमारा, यहां से आया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 12% ऑन 30,000, आप मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसको अंदर में लिख के आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अलग करके लिख दिया 12% ऑन 30,000, ठीक है। ये भी जो इन्वेस्टमेंट था वो 12% का इन्वेस्टमेंट था, तो हम लोग ने 12% ऑन 30,000 कर लिया, तो ये हमारा कितना आएगा अभी अमाउंट, 3600। तो आप इसको अंदर लिख के भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 12% इंटरेस्ट बोल के भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट बाकी है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, एट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल के लिखेंगे। अभी हम लोग को लिखना है, अंदर में एक बुक में दिया है, ठीक है, रेसिडेंट रेवेन्यू अकाउंट में दिया 30,000 प्लस आउटर कॉलम में हम लोग को एक दिया है 40,000, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 70,000, ठीक है, 70,000 आया ना। तो अभी हम लोग को अभी क्या करना है, डेप्रिसिएशन बोल के दिया था हम लोग को कितना, 10% एट द रेट 10%। तब हम लोग को डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे टोटल अमाउंट में करेंगे, तो है कि नहीं, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग खरीदे थे तो उसमें हम लोग का एक्सपेंडिचर कितना रहा डेप्रिसिएशन, तो हम लोग को यहाँ लिखना है 7,000, 10% कितना आएगा 7,000, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल अमाउंट आएगा जो कि हम लोग को बैलेंस में दिखाना है, ये है 63,000। जब हम लोग ये प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 6219,300, ठीक है, 2,19,300, ठीक है। ये रहा हमारा एसेट साइड का अमाउंट हम लोग लिख दिया। अभी हम लोग को देखना है लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम आएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। हम लोग ने जो निकाल के रखे थे पहले ऑलरेडी, कितना था हमारा 1,66,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अंदर में 1,66,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है हम लोग ने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे, तो हम लोग को यहाँ में एक सरप्लस मिला था ना, ये प्रॉफिट है ना, है कि नहीं, तो हम लोग को ये भी लिखना है, अभी ऐड करना है हम लोग को, क्या ऐड करना है, सरप्लस, ठीक है, जो कहां से आया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सरप्लस बोल के, ठीक है, फ्रॉम कहां से आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो लिख सकते हो आप लोग, डायरेक्टली सरप्लस बोल के लिख दिया मैंने, तो 14,800। तो हमारा टोटल कैपिटल फंड कितना रहा, यहाँ आप लिख सकते हो 1,80,800, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, आउटस्टैंडिंग बोल के दिया है सैलरी, क्वेश्चन में दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के दिया है, तो हम लोग को आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहाँ आता है, इट इज आवर लायबिलिटी, वी हैव टू पे, एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग ने लायबिलिटी साइड में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, लास्ट पॉइंट, दैट इज लीगेसी, ठीक है। जब भी हम लोग किसी का सामान यूज करते हैं तो इट इज आवर ड्यूटी टू पे सम अमाउंट एज लीगेसी, ओके। हम लोग किसी का सामान यूज करें तो उसके लिए हमारा पैसा देना हम लोग को जरूरी है, तो इट इज आवर लीगेसी टू यूज दैट अमाउंट, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना है, लायबिलिटी कितना है, लीगेसी इट इज आवर अमाउंट, ये रहा हमारा लीगेसी, ठीक है। हम लोग लिख दिया 37,000। अब हम लोग का बैलेंस हम लोग को देखना है, टोटल करने के बाद हमारा जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बहुत सारे हम लोग का टोटल इक्वल आएगा, तो आप लोग टोटल कर सकते हैं इसको 2,19,300। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा बैलेंस शीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो आप लोग ध्यान में रखिए ये पॉइंट को, ये क्वेश्चन को अच्छा से कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। सो दिस इज आवर एक्चुअल बैलेंस शीट, हम लोग का फाइनल बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस, you just
डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट कंटिन्यू। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प हो। क्वेश्चन बहुत तरीका का मिलता है एग्जाम में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन ओनली यू कैन एबल टू डू द सम इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, देन ओनली यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे छोटा मोटा चेंजेस है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है, तो आपका बैलेंस शीट अच्छा होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।